प्रश्नकाल प्रश्न संख्या 341 सर, क्वेश्चन नंबर 341 उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया है। श्री N.K. प्रेमचंद। Thank you very much, Mr. Speaker, sir. Sir, a detailed answer has been submitted to the House. Sir, I would like to ask the first supplementary, that is regarding the rural development. One of the flagship program of the Rural Development Ministry is the Prime Minister's Gramin Sadak Yojana. But recently, the revised guidelines of the PMGSY is not suited to the various states, in particular the state of Kerala. Because Prime Minister's Gramin Sadak Yojana is the guidelines, the norms and the criteria for taking up those roads are being totally changed. For example, the DPR for PMGSY 4 works as per the existing IRC 20 guidelines. Only open graded chipping carpet can be provided as a surface course. When roads are constructed according to this specification, frequent damages occur on many roads within a short period of time. Therefore, this item has to be replaced with 30 millimeter bituminous concrete is required. And similarly, so many other, and only mud roads will be taken. As far as the state of Kerala is concerned, almost all the roads are blacktop roads. So it is very difficult to find the roads, and the minimum length of the road is also being minimized from 3 kilometers to 500 meters. So I would like to know from the Honorable Minister whether the government proposes to review and modify the terms and conditions of the guidelines in consultation with the states and revise the scheme so as to make it suitable to the regional and geographical conditions. That is a specific first supplementary question to the Honorable Minister. Thank you very much. अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने बहुत विस्तार से और कई प्रश्नों का एक में मिला के प्रश्न पूछा है। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क IRC के मानकों के आधारित पूरे देश के लिए गुणवत्ता के हिसाब से पूरे देश के लिए एक समान बनाई जाती है। माननीय सदस्य ने जहाँ तक केरल की बात की है, मैं इनको बताना चाहूँगा कि केरल में विभिन्न कई चरणों में करीब 2336 पात्र बसावटें पाई गई हैं, जो फेज 4 में हम लोग दे रहे हैं। और इससे पहले भी बहुत सारी सड़कें फेज 1 में, फेज 2 में, फेज 3 में केरल का ध्यान दिया गया है। जहाँ तक माननीय सदस्य ने पूछा है कि जैसे कि 3 मिलीमीटर बिटवीन कंक्रीट, ड्रेन्स कंक्रीट, शोल्डर आदि अपना सकते हैं। राज्य सरकारों को ये हम लोगों ने पहले से ही कर रखा है कि परिस्थितियों को देखते हुए वो अपने मानक को चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो भी खर्चा एक्स्ट्रा आएगा उसको राज्य सरकारों को वहन करना पड़ेगा। Sir, my second supplementary, it is indirectly connected to the Rural Development Ministry, that is regarding the human-wildlife conflict in rural India. Results in injuries and deaths as well as crop damage, livestock loss and destruction of property. Sir, in my constituency, Tenmala, Aryangav, Kulatupura, Achankovil and Chidra are among the most affected areas. At present, the Rural Development Department does not have any specific scheme for the rehabilitation, protection or adequate compensation for the affected rural population. So I would like to ask to the Rural Development Ministry a specific question, whether the government proposes to initiate action to formulate a scheme through the Rural Development Department for the protection, rehabilitation and compensation of rural populations affected by human-wildlife conflict. Thank you very much. सर, माननीय सदस्य ने जो पूछा है वो पंचायती राज और जलवायु और फॉरेस्ट से संबंधित प्रश्न है, लेकिन जो आंसर मेरे पास आपके विभाग में प्रावधान नहीं बता दें मंत्री? नहीं, मैं बताता हूँ हाँ। मैं बता रहा हूँ। माननीय सदस्य ने पूछा वो विभिन्न 2-3 मंत्रालयों का प्रश्न है। मेरे पास जो जानकारी है, देश में मानव वन्य जीवन संघर्ष का प्रबंधन तथा प्रभावित लोगों को मुआवजा प्रदान करने का मुख्य रूप से राज्य सरकारों और केंद्र सरकार शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी है। पहले 2 लाख, किसी कोई मर जाता था तो 2 लाख रुपए दिया जाता था किसी जंगली जानवर से या किसी भी
से 2 लाख दिया था, लेकिन हमारी सरकार जब से आई उसको 5 लाख किया गया और 5 लाख से 2023 के बाद उसको हम लोगों ने 10 लाख रुपए करने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, बाद में सितंबर 23 के बाद इसको 10 लाख किया। इसके अलावा गंभीर चोट के लिए 2 लाख तथा सामान्य चोट के लिए 25,000 तथा उपचार के लिए अनुशंसा की गई है। फसल, पशुधन या संपत्ति के नुकसान के लिए मुआवजे की दरें संबंधित राज्य सरकारें अपनी परिस्थितियों के अनुसार से आकलन करती है और जो भी उसका फसल या कोई नुकसान होता है तो राज्य सरकार अपने हिसाब से उसको देने का काम करती है। श्री अरुण नेहरू। Sir, thank you for the opportunity, Speaker sir. Sir, will the Minister of Rural Development be pleased to share with this Honourable House the total funds released to Tamil Nadu under major centrally sponsored schemes, specifically Manrega and PMAYG, to the last 3 years, and clarify if there's any pending amounts that are being due and hence the effect on the state scheme. So the second question is, will the government consider revising the cost sharing pattern and enhance the central share to ensure parity on a 60-40 basis? Certain schemes have still not reached the 60% contribution, sir, and I hope the minister will be pleased to say that they will be happy to share with the states for the progress of the nation. Thank you, sir. माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक विभिन्न राज्यों में रेशियो की बात है, जैसे 60-40 अभी हमारा बीबीजी राम जी में आया है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि हम उसको चेंज करें, लेकिन मुझे कहते हुए खुशी है कि रह रही है कि अब हमारे सभी राज्य, हमारी सभी योजनाएं, चाहे वो प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, चाहे PMAY हो, चाहे NRLM हो, सभी राज्य सरकारें इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रही हैं। जहाँ तक नई योजना VG राम जी का सदस्य ने उठाया है, पूर्व में भी कई ग्रामीण रोजगार योजनाओं में NRLP हो, SGRY हो, JRY हो, केंद्र में और राज्य सरकारें साझी भागीदारी निभाई जाती है। अध्यक्ष महोदय, इससे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना के साथ जवाबदेही बढ़ती है। श्री दर्शन चौधरी। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, क्या यह सरकार बताने की कृपा करेंगे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जलागम विकास घटक WDC PMKSY के माध्यम से वर्षा आधारित और क्षरित भूमि के विकास के लिए क्या कार्य किए गए हैं? क्या इस योजना से किसानों की आय बढ़ाने, जल संरक्षण और ग्रामीण रोजगार सृजन में कोई ठोस परिणाम सामने आए हैं? माननीय महोदय, मैं ये जानना चाहता हूं कि स्थानीय स्वशासन संस्थाओं जैसे पंचायत और नगरीय निकाय के प्रति नागरिकों में जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने WDC PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत प्रश्न पूछा है। इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए इसको प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य वर्षा आधारित और क्षरित भूमि का समग्र विकास करना, जल संरक्षण को बढ़ावा देना है और किसानों की आजीविका को मजबूत करना है। अध्यक्ष महोदय, WDC PMKSY 1.0 के अंतर्गत देश भर में लगभग 6,382 जलागम परियोजनाएं स्वीकृत की गई, जिनके माध्यम से करीब 2.95 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने का लक्ष्य रखा गया था। अब तक करीब 6,376 परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं और लक्षित क्षेत्र में व्यापक काम हो रहा है। इस योजना के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी सामने आई हैं। 7.6 लाख से अधिक जल संचयन संरचनाएं बनाई गई हैं। लगभग 16.4 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को सुरक्षात्मक सिंचाई के अंतर्गत लाया गया। ओके। क्वेश्चन नंबर 342 श्री यदुवीर वाडियार। क्वेश्चन नंबर 342। माननीय मंत्री महोदय। विवरण सभा पाठवता रख दिया गया। माननीय सदस्य। ಧನ್ಯವಾದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ. ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ತಾವು ನಮಗೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಈ ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ತಂಬಾಕು ಒಂದು ಹಾನಿಕಾರಕ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗತಿ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕ್ರಾಪ್ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಸುಮಾರು 5,900 ಎಕರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿರೋದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಒಂದು ಸಂಗತಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 1,500 ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ. 879 ಹೆಕ್ಟೇರು ನಮ್ಮ ಈ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿರೋದು ನಿಜಕ್ಕೂ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯರ ಒಂದು ಸಚಿವರಿಗೆ ಇರೋದು, ಈ ಒಂದು ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆಗಾರರ ಒಂದು ಏನು ಕ್ರಾಪ್ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ವಿಸ್ತಾರಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದೇಶ ಈ ಒಂದು ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆಯಿಂದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನೇನು ಕ್ರಮಗಳು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद जी ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। एक तंबाकू एक वाणिज्यिक फसल है किसान के लिए, परंतु हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये जब सर्वे किया तो उसमें आया है कि तंबाकू से बहुत बड़ी मानव की समस्या खड़ी हो रही है और विशेष तौर से कैंसर की। इसलिए तंबाकू जो खेती किसान कर रहा है उससे उसको दूसरी फसल के ओर ले जाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने 5 साल में अनेक काम किए हैं। क्योंकि किसान को बचाना जरूरी है, परंतु मानव को यदि बचेगा नहीं तो किसान की प्रगति क्या काम की। मैं कर्नाटक सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने 30,000 एकड़ से भी ज़्यादा जो तंबाकू की खेती की जो फसल है वो कम की गई है और दूसरे खेती की और विविधीकरण के अंदर वो गई है, उसमें केंद्र सरकार द्वारा उनको पूरी सहायता दी जा रही है। जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जो ये आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे प्रमुख तंबाकू जो राज्य है, वहाँ फसल में विविधता लाने के लिए विविधीकरण CDP के माध्यम से नई योजना शुरुआत की गई है और उसमें 538.40 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। 88,467 हेक्टेयर क्षेत्र में तंबाकू खेती को के ऊपर दालों, तिलहन, मोटे अनाज, श्रीअन्न, बागवानी फसलों जैसी उपयुक्त वैकल्पिक फसलों को लक्ष्य रख के उसको ऊपर किसानों को डाइवर्ट किया गया है। क्योंकि और पिछले तंबाकू की खेती में 2021-22 से तुलना में 80,000 हेक्टेयर में खेती कम की गई है। ये माननीय सदस्य सप्लीमेंट. ಧನ್ಯವಾದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ. ನಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದು, ಈ ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆಯಿಂದ ಅವನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆ ಅಷ್ಟೇ ಆದಾಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಚಿವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿ. अध्यक्ष महोदय, फसल विविधीकरण कार्यक्रम CDP के माध्यम से पहले मैंने आपसे निवेदन किया था। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना PMRKVI के अंतर्गत 13-14 से मूल हरित क्रांति राज्यों, जैसे मैंने कहा जो 10 राज्य है, वहाँ हमने इस कार्यक्रम का उद्देश्य अधिक जल खपत वाली धान, पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा और पंजाब में जहाँ ज़्यादातर पानी की उपलब्धता है और वहाँ फसल की जा रही है, इससे डाइवर्ट करके हम दूसरे दलहन, तिलहन, मोटे अनाज, पोषक अनाज, कपास और कृषि वानिकी जैसी वैकल्पिक फसलों की ओर वृद्धि करने के लिए केंद्र सरकार काम कर रही है। श्री राजीव राय. धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने बोलने का मौका दिया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वैकल्पिक कृषि एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन क्या सरकार ने उन इलाकों के बारे में अध्ययन किया है जहां छोटे छोटे किसान हैं, आधा एकड़, पौन एकड़, 1 बीघा जमीन है और ट्रेडिशनल खेती से कभी बाढ़ और कभी सुखाड़ में वो बर्बाद हो जाते हैं, हमेशा कर्जदार रहते हैं। क्या सरकार ने अध्ययन करके कोई ऐसी योजना शुरू करी है जहां वैकल्पिक कृषि के लिए ट्रेनिंग उन इलाकों में, खासतौर से पूर्वांचल में किसानों को दिया जाए कि उन्हीं जो जगह है वैकल्पिक खेती करें, जिससे उनके कृषि उत्पाद का मूल्य अधिक हो, कर्ज में न डूबे और उनके जीवन स्तर को सुधार हो। माननीय मंत्री. अध्यक्ष महोदय,
मूल प्रश्न था तंबाकू के स्थान पर वैकल्पिक फसलों का, और जैसा माननीय राज्य मंत्री जी ने बताया 13 लाख लोगों की मृत्यु तंबाकू के सेवन के कारण, विभिन्न तरीकों के सेवन के कारण होती है। तो उसमें वैकल्पिक फसलों का हम लोग प्रबंध कर रहे हैं। और मुझे ये बताते हुए भी खुशी है कि हमने केवल ये नहीं कहा कि तंबाकू छोड़ दो, क्योंकि किसान को भी कैश क्रॉप की जगह आय तो चाहिए। हमने उसके स्थान पर कौन कौन सी फसलें पैदा की जा सकती है, किस किस इलाके में, वो भी चिन्हित करने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे FCB तंबाकू की जगह हाइब्रिड मक्का, मिर्च, शकरकंद, कपास, मक्का, आलू, चिया, मक्का, फील्ड बीन, लोबिया, रागी, रेड ग्राम, मूंगफली, वैसे बीड़ी तंबाकू की जगह गन्ना, सोयाबीन, ज्वार, मूंगफली, ज्वार, और उसके साथ साथ माननीय अध्यक्ष महोदय अलग अलग प्रकार की कौन सी फसलें हो सकती है वो भी हमने विकल्प सुझाए हैं। लेकिन माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है कि जो छोटे छोटे किसान हैं वो छोटी जोत के आकार में, क्योंकि हमारे यहाँ जोत के आकार काफ़ी छोटे हैं, लैंड होल्डिंग काफ़ी कम है, उनमें कैसे बेहतर खेती करें। तो मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से सदन को कि हमने इंटीग्रेटेड फार्मिंग के, एकीकृत खेती के अनेकों मॉडल पर काम करना शुरू किया है और कई जगह उनका डेमोन्स्ट्रेशन भी कर रहे हैं। क्योंकि छोटा किसान केवल एक फसल ना लगाए, वो खाद्यान्न भी, गेहूं चावल भी, उसके साथ सब्जियां भी, उसके साथ फल भी, उसके साथ पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, बकरी पालन या कृषि वानिकी, अलग अलग कई क्षेत्रों में वो ध्यान दे सकता है। हमने ये प्रयत्न किए कि छोटे किसान की खेती भी लाभ का धंधा कैसे बने। जी.के. पड़वी जी, जी.के. पड़वी बोलिए। थैंक यू स्पीकर सर, मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ संक्षिप्त में, देखो मैं फिर आग्रह करता हूँ, संक्षिप्त में प्रश्न, संक्षिप्त में जवाब। मुझे 20 प्रश्न लगे, 20 को पूरा करने का प्रयास करना होगा। यस सर। समाचार रिपोर्टर और किसान संगठनों ने बार बार यह मुद्दा उठाया है कि महाराष्ट्र के किसान बार बार फसल नुकसान और कम बाजार मूल्यों की समस्या का सामना कर रहे हैं। मेरी सरकार से ये प्रश्न है कि नंदुरबार जैसे ज़िलों में कुछ प्रोसेसिंग यूनिट, कुछ स्टोरेज फैसिलिटी या मार्केट लिंकेजेस की स्थापना कर रही है सरकार, ताकि किसानों को निश्चित बाजार और मूल्य संवर्धन सुविधाएं मिलेगी। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सारा देश जानता है, किसानों को उपज का ठीक दाम देने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हम फसलों की खरीद करते हैं। और इस साल भी माननीय सदस्य को बताते हुए मुझे जानकारी है, गेहूं हो, धान हो या दलहन की फसलें हो, तिलहन की फसलें हो, सबका मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाया गया है। न केवल मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाया है, बल्कि अभी भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर फसलों की ऐतिहासिक खरीदी जारी है। और ये सरकार है मोदी जी की, जिसने तय किया है दलहन में तुअर, मसूर, उड़द जितनी किसान बेचना चाहेगा हम पूरी की पूरी खरीदने का काम करेंगे। गेहूं की खरीदी की भी तैयारी हो गई है, धान की खरीदी की भी तैयारी है। माननीय सदस्यगण, कृषि पर चर्चा लगी हुई है, इसलिए डिटेल बात उस पर होगी। चर्चा करनी नहीं करनी उसके बारे में एक संसदीय कार्य मंत्री सभी लोगों से और चर्चा करेंगे समय को देखते हुए। लेकिन क्वेश्चन नंबर 343 से मुरारी लाल मीणा। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया कि यदि बीमा कंपनियां या राज्य सरकार की ओर से क्लेम के भुगतान में देरी होती है तो उन पर 12% का जुर्माना लगाया जाता है। मेरा प्रश्न ये है कि ये जुर्माना की राशि पीड़ित किसानों को देने के बजाय सरकार के खाते में क्यों जमा होती है? जब नुकसान किसानों का हुआ है तो भुगतान में देरी से परेशानी किसानों को ही होती है, तो ये जुर्माना राशि किसानों को दी जाए। दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के एक जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसमें बैंक और बीमा कंपनियों की मिलीभगत है।
ये फर्जीवाड़ा स्वयं राजस्थान के कृषि मंत्री ने पकड़ा है। ये तो एक जिले का मामला है, बाकी देश के अन्य जिलों में यही हालत हो सकती है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ, इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई, भविष्य में ऐसे मामले ना उसको रोकने के लिए क्या नई निगरानी व्यवस्था की जा रही है? माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि ये संशोधन हम नहीं किया है। पहले फसल बीमा योजना में कई महीनों तक किसान के खाते में भुगतान ही नहीं होता था, और कई बार जब तक पूरी तहसील में नुकसान ना हो जाए तब तक नुकसान की भरपाई होगी नहीं। हमने फसल बीमा योजना के सारे नियमों में संशोधन करके ये तय कर दिया कि एक किसान का भी नुकसान होगा तो नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी को करनी पड़ेगी। स्थानीय आपदा में सम्मिलित करने का काम मोदी जी की सरकार ने किया, और ये भी प्रावधान हमने किया। कई बार बीमा कंपनियां क्लेम किसान के खाते में अंतरित करने में देर करती थी, और इसलिए ये मोदी सरकार है जिसने तय किया कि उपज के आंकड़े आने के बाद 21 दिन के अंदर अगर बीमा कंपनी ने किसान के खाते में पैसा नहीं डाला तो 12% ब्याज की राशि किसान को देनी पड़ेगी। वो राशि सीधे किसान के खाते में डाली जाएगी। और अब मैं ये भी माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि कई बार जो प्रीमियम की सब्सिडी रहती है उसका भुगतान राज्य सरकार भी देर से करती है, इसलिए हमने डीलिंग कर दिया अपनी राशि को केंद्र सरकार की राशि को राज्य सरकार से। जैसे ही क्लेम सेटल होगा केंद्र सरकार तुरंत पैसे डालेगी, और राज्य सरकार भी अगर देर करेगी तो 12% ब्याज किसान के खाते में राज्य सरकार को भी डालना पड़ेगा। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री। अध्यक्ष महोदय, मेरा इसी में जो दूसरा क्वेश्चन था, अगर राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री महोदय ने एक बहुत बड़ा एक फर्जीवाड़ा पकड़ा है, आपकी जानकारी में होगा, उसके बारे में जानकारी दें कि और देश में कितने स्थान ऐसे हैं जहाँ पे ऐसे फर्जीवाड़े हो रहे हैं, उनके खिलाफ तो क्या कार्रवाई करी। नंबर एक तो ये है, और दूसरा राजस्थान के अंदर जो क्लेम किसानों का आपने जो क्लेम दिया है पिछले 3 वर्ष में 9,929 करोड़ दिया है, तो इसमें कितना प्रीमियम जमा हुआ था 3 साल में? क्योंकि गैप इतना ज़्यादा है कि बीमा कंपनियां बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही हैं, और टोटल जो उनका प्रीमियम होता है उसका 20-30% ज़्यादा भी किसानों को नहीं मिल पाता। इसलिए पहला मेरा क्वेश्चन जो आपके मंत्री ने ही जो फर्जीवाड़ा पकड़ा है विशेषकर सालासर चूरू जिले में, उसके बारे में जानकारी दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हमारे ही मंत्री है जो गड़बड़ होती तो पकड़ लेते हैं, क्योंकि मोदी जी ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये तो हमारी सरकार की नीति है, और ये हमारी सरकार है माननीय अध्यक्ष महोदय कि हमने राजस्थान में पिछले 3 साल में 9,930 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान 2,50,00,000 किसानों के खाते में जमा करवाया है। उसका तो धन्यवाद देना चाहिए। पहले तो ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं मिलता था। और माननीय अध्यक्ष महोदय, लगातार हम कृषि रक्षक पोर्टल और बाकी माध्यमों से हम ये ध्यान रखते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो, और हमने तय किया है कि कहीं भी गड़बड़ हो तो किसान सीधे कॉल करे, और उस कॉल पर मुझे बता दूं प्रसन्नता है, कृषि रक्षक पोर्टल में 2,71,708 शिकायतें दर्ज की गई। उन शिकायतों की हम जांच करते हैं, और जांच करने पर अगर कहीं गड़बड़ पाई जाती है तो कड़ी कार्रवाई करते हैं। किसी को गड़बड़ करने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा। ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार है। एक माननीय मंत्री जी, एक सभी अलग अलग समूह बनाकर, एक मिनट, अलग अलग समूह बनाकर माननीय सांसदों का मार्गदर्शन भी हो जाए फसल बीमा पे डिटेल, ताकि वो जानकारी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, और हम अलग अलग समूह में फसल बीमा योजना के बारे में पूरी जानकारी माननीय सांसद महोदयों को निश्चित तौर पर दें। क्वेश्चन नंबर 344 श्रीमती संजना जाटव। माननीय मंत्री महोदय, पर रख दिया गया। श्रीमती कमलजीत सरावत। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, विस्तृत रूप से हमें इस प्रश्न का उत्तर मिला है, और ये जानकर भी बहुत खुशी हुई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में सरकार, हमारे मंत्री जी लगातार
इन दिव्यांगजनों को देने वाली सुविधा को बढ़ा रहे हैं। मेरा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री दिव्याशा वयोश्री केंद्र क्यों कार्यान्वित किए गए हैं, इसका उद्देश्य क्या है, वर्तमान में कितने केंद्र संचालित हैं और इस पहल के तहत मंत्री जी दिव्यांगजनों को कितनी सहायता प्रदान करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिकता का प्रथम चरण है और पहली बार इनको अलग अलग शब्दों से संबोधित किया जाता था। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उनको दिव्यांग शब्द दिए जाने से पूरे देश के दिव्यांगजनों के मन में एक आत्मनिर्भरता गौरव का भान आया। प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र और वयोश्री केंद्र ये प्रारंभ किए जाने से एक ही स्थान पर दिव्यांगजनों का उनका परीक्षण भी हो जाता है, उनको जो सहायक उपकरण मिलना है उस सहायक उपकरण के वितरण करने का कार्य भी वहीं पर हो जाता है, उनको बार बार चक्कर नहीं लगाना पड़ता है, अलग अलग स्थानों पर नहीं जाना पड़ता है। और अभी तक देश भर में 100 प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र प्रारंभ किए गए हैं। ये प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र प्रारंभ होने से ग्रामीण क्षेत्र के और दूर दराज क्षेत्र के जो हमारे दिव्यांगजन होते थे उन दिव्यांगजनों को ये प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र प्रारंभ होने से उनको सहायक उपकरण मिलने में और सहायक उपकरण के साथ ही साथ उनको फॉलोअप सेवाएं भी प्राप्त करने में काफ़ी सुविधा हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, अभी तक 100 प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र प्रारंभ किए गए हैं और इन दिव्याशा केंद्रों के माध्यम से 2,95,038 दिव्यांगजनों को और वरिष्ठ नागरिकों को 342.20 करोड़ रुपया मूल्य के सहायक यंत्र और सहायक उपकरण प्रदान किए गए हैं। श्रीमती वीणा देवी। माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहती हूँ, क्या ट्रायल योजना के तहत मोटर चालित ट्रायल साइकिल प्रदान की जाती है? यदि हाँ तो पिछले 3 वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान वितरण की गई मोटर चालित साइकिल ट्रायल साइकिल की संख्या और उसका विवरणी क्या है? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, एटिप योजना से दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरण प्रदान करने के साथ ही साथ एडिप योजना में और भी कई प्रावधान किए गए हैं। और माननीय सांसद महोदय जी ने जो प्रश्न किया है कि इसमें ट्राई मोटराइज साइकिल देने का भी प्रावधान है क्या, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि एडिप योजना के अंतर्गत ट्राई मोटराइज गाड़ी देने का भी प्रावधान है। और इस योजना में जिन दिव्यांगजनों को ट्राई मोटराइज गाड़ी दी जाती है उसके लिए 80% दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आप स्वयं अभी रविवार को ही अपने क्षेत्र में और आपने अपने क्षेत्र में दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरणों का वितरण किया, उसमें ट्राई मोटराइज गाड़ी का भी वितरण किया। जहां तक सामान्य दिव्यांगजनों के लिए 80% दिव्यांगता इसमें अनिवार्य होती है, वहीं समग्र शिक्षा अभियान में जो स्कूल में पढ़ने वाले 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के जो विद्यार्थी होते हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए ये ट्राई मोटराइज गाड़ी प्राप्त करने के लिए 80% की दिव्यांगता को कम करके इसको 40% किया गया है, जिससे हमारे स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी वो आसानी के साथ में अपने विद्यालय तक पहुंच सकें। अपने गांव से अपने शहर में जहां से दूरी पर रहते हैं, एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। और एडिप योजना में कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी का भी प्रावधान किया गया है। 0 से 5 ईयर तक के ऐसे बच्चे जो जन्म से ही सुन नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, ऐसे जन्मजात जो बच्चे होते हैं जो बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते हैं, उनकी कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी करने का भी एडिप योजना में प्रावधान है। और इनके लिए ऐसे गरीब परिवार के सामान्यतः ऐसे बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में होते हैं और कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी में 6 लाख रुपए तक का लगभग खर्च किया जाता है, वो विभाग के द्वारा खर्च किया जाता है। मोटराइज व्हीलचेयर का के साथ ही साथ कृत्रिम अंग कहीं दुर्घटना में, रेल दुर्घटना में, बस दुर्घटना में, मोटरसाइकिल दुर्घटना में किसी का हाथ या पैर अगर क्षतिग्रस्त हो जाता है, वो कृत्रिम हाथों पैर लगाए जाने के लिए 5 साल में एक बार वो कृत्रिम लगाए जाने के लिए 30,000 रुपए तक की सब्सिडी दिए जाने का भी इसमें प्रावधान है। श्रीमती प्रभा मल्लिकार्जुन। Thank you, Speaker, sir. So, I would like to know whether there has been any revision
in the assistance amount in recent years provided to the specially abled? And if not, what are the reasons for the same despite the rising costs? And also regards to the employment, what is the current status of reservation for persons with disability in government jobs? Thank you, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, दिव्यांगजनों के लिए आर्थिक सहायता की बात उनके द्वारा कही गई माननीय सदस्य के द्वारा, तो दिव्यांगजनों के लिए एक और जहां उनको रोजगार की दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए कौशल विकास योजना के साथ में जोड़ा गया है और कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत वो अपना कोई कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो दिव्यांगता वित्त एवं विकास निगम से उनको कम ब्याज की दर पर उनको राशि उपलब्ध कराई जाती है और उसके द्वारा निर्मित जो वस्तुएं होती हैं, हमारे बहुत सारे दिव्यांगजन गाँव में रहते हैं, शहरों के स्लम एरिया में रहते हैं, लेकिन उनको सामान बेचने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, तो ऐसे दिव्यांगजनों के लिए वो सामान विक्रय करने के लिए दिव्य कला मेलों की शुरुआत की गई है और देश भर में अभी तक 30 दिव्य कला मेले लगाए गए हैं। इन 30 दिव्य कला मेलों के माध्यम से दिव्यांगजन अपने द्वारा निर्मित वस्तुओं का विक्रय वहां पर करते हैं। इससे उनका आर्थिक सशक्तिकरण भी हो रहा है और आरक्षण की बात जो उनके द्वारा की गई है, तो हमारे दिव्यांगजनों के लिए शासकीय मान्यता प्राप्त स्कूलों में जो 3% का आरक्षण था उसको बढ़ाकर 5% किया गया और शासकीय नौकरियों में भी आरक्षण को 3% से बढ़ाकर 4% किया गया। क्वेश्चन नंबर 345 निशिकांत दुबे, संख्या 345। माननीय सदस्य। विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया। माननीय सदस्य। अब देखिए, प्रश्न पर भी ये परेशानी है स्पीकर महोदय। आप स्पीकर महोदय, इस महीने का जनवरी और फरवरी में जो ट्रेड डेफिसिट है भारत सरकार का, वो मिडिल ईस्ट के वार के कारण जो है वो दुगुना हो गया। पिछली बार ये 14 बिलियन के आसपास था, इस बार जो है इस महीने का वो 28 बिलियन। कभी यूक्रेन रूस का वार हो जाता है, कभी मिडिल ईस्ट का वार है, पूरी दुनिया जो है वो अस्थिर है। मेरा आपके माध्यम से, क्योंकि सोना भी इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, चांदी भी इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से ये प्रश्न है कि इस तरह की जो समस्याएं पूरी दुनिया झेलने वाली है वर्षों तक, उसके लिए भारत सरकार ने एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए किस तरह का काम किया है और फ्यूचर में वो कैसा करने वाले हैं? आपके माध्यम से मैं माननीय हमारे लर्नेड मेंबर को सूचित करना चाहता हूं और सदन को बताना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दो बहुत ही मूल चीज़ें ध्यान रखी गई हैं, ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। उसी के तहत एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन की, जिसका आवंटन करीब 25,000 करोड़ है अगले 5 सालों में एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए। और ये जैसे कि माननीय सदस्य ने बताया कि जियोपॉलिटिकल कंडीशंस, ईरान की जो समस्या है, यूक्रेन की है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो घटनाक्रम हो जाते हैं जिससे हमारा निर्यात प्रभावित हो जाता है। और हमें ये एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन जो लाए हैं, ये इसी के दृष्टिकोण से लाए हैं कि जो पहले योजना थी वो सिर्फ सब्सिडी की तरफ काम होती था कि लोगों को प्रोत्साहन दिया जाता था, मगर इसमें एक्सपोर्ट प्रमोशन में ये देखा गया है कि पहले मार्केट स्टडी की जाती है, फिर देखा जाता है कि कौन से एक्सपोर्टर्स हैं जो उसमें काम कर सकते हैं, और प्रयास ये किया जा रहा है जो हमारे छोटे एक्सपोर्टर्स हैं उसका भी समायोजन बढ़ाया जाए। मैं माननीय सदस्य और सदन को बताना चाहता हूं कि करीब 50,000 ऐसे हमारे एक्सपोर्टर्स हैं जिनका पूरा 95% एक्सपोर्ट होता है, और 3 लाख एक्सपोर्टर्स जो हैं वो सिर्फ मात्र 5% से 1% तक उनका योगदान है। तो ये सरकार की योजना यही है कि छोटे जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनका समायोजन, उनका योगदान एक्सपोर्ट्स में बढ़ाया जाए। तो इसी के तहत ये जो एक्सपोर्ट प्रमोशन जो हमारा योजना है, इसमें प्रयास ये की जा रहा है कि हमारा एक्सपोर्ट्स की मात्रा बढ़ाई जाए, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन हो, प्रोडक्ट्स जो हैं दूसरे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं हमारे बहुत ही महत्वाकांक्षी पूरे विश्व भर में, कि एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से वो उन देशों में भी हमारा निर्यात हो जहां अभी तक नहीं हो पाया है। साथ ही साथ भारत में भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि चंद लोग ना इसको पूरा कब्जा कर लें।
हम एक एक गांव, एक एक घर और एक एक क्षेत्र में प्रयास करते हैं कि जो लोग वंचित रह जाते हैं, क्योंकि जो समुद्री तट पे नहीं होते, उनको भी ऐसी योजनाएं लाई जाई हैं और उनको वो सुविधा दी जाती है फाइनेंशियल तरीके से। 2 इसके सब स्कीम्स हैं, निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा। एक फाइनेंशियल उसको प्रोत्साहन दिया जाता है और दूसरा लोगों के टेस्टिंग, उनकी मार्केट एक्सेस, उनको तमाम ऐसी चीज़ें हैं। तो ये सब ध्यान में रखते हुए पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जितनी भी डिस्टर्बेंस विश्व भर में हो रही है, भारत की नीति, भारत की सोच दूरगामी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा प्रयास किया जा रहा है कि हम हर तरीके से हमारे जितने भी निर्यात वाले हैं उनको बचा के रखें, उनको प्रोटेक्शन दें और उनको बढ़ोतरी दें। अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो मत नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश विकसित भारत 2047 की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जो मैंने अभी प्रश्न किया सर, कि केवल 1 महीने में जो डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट, वो 34 बिलियन का है। माननीय मंत्री महोदय जी ने जो मुझे उत्तर दिया सर, कि 5 साल में केवल 25,000 करोड़ रुपया, 5 साल 2031 तक की बात है। मैंने कहा कि आपके पास क्या फंड होगा, और जिसकी उन्होंने बात की सर, निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा, उसके जो सब स्कीम है कि सपोर्ट ऑफ अल्टरनेटिव ट्रेड इंस्ट्रूमेंट, क्रेडिट असिस्टेंस फॉर ई कॉमर्स, इंटरनेट सबवर्सन, सपोर्ट फॉर एमर्जिंग एक्सपोर्ट, ट्रेड रेगुलेशन, लॉजिस्टिक इंटरवेंशन, इन सबों में वाइज, मतलब इन सारे योजनाओं में कितने कितने पैसे 5 साल में ये देने वाले हैं, और जो ट्रेड डेफिसिट नहीं बढ़े इस तरह के अलार्मिंग सिचुएशन में, उसके लिए भारत सरकार क्या कर रही है? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय निशिकांत जी ने बहुत सही विषय सदन का और देश का ध्यान आकर्षित किया है, परंतु आज के विश्व की परिस्थिति के हिसाब से 1-2 महीने में वित्तीय ट्रेड का घाटा, व्यापार में घाटा, मर्चेंडाइज में बढ़ने की स्थिति आई है। लेकिन साथ ही साथ ध्यान में रखना होगा कि हमारा देश सिर्फ मर्चेंडाइज एक्सपोर्टर नहीं है। हमारे देश की जो काबिलियत है, हमारे देश में जो अलग अलग प्रकार के उद्योग और जो कौशल है देश का, उसमें सर्विसेज सेक्टर में भी हमने बहुत बढ़त की है। और माननीय निशिकांत जी को खुशी होगी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, पूरे देश को, सदन को खुशी होगी कि सर्विसेज एक्सपोर्ट में अमूलचूल बढ़त भारत ने पिछले 3 वर्षों 4 वर्षों में की है। उसके तहत अगर आप देखें, मर्चेंडाइज और सर्विस दोनों को जोड़ के जब हम देखते हैं, तो जो ट्रेड डेफिसिट है वो साधारणतः 1.25% जीडीपी का हर वर्ष रहा है। बीच में तो सरप्लस में भी हम आ गए थे 4 साल पहले। ऐसी परिस्थिति में हमने सिर्फ एक आंकड़ा देखने के बदले व्यापक रूप से निर्यात कैसे होगा, किन चीज़ों में कंपेटिटिव एडवांटेज है, यानी विश्व के सब देशों के सामने हमारी स्पर्धा में खड़े रहने में कैसी चीज़ें हैं, कौन से वो वस्तु हैं, कौन सी वो सेवाएं हैं जिसमें हम स्पर्धा में आगे जा सकते हैं। हमारा ध्यान उस पर आकर्षित है। और जिस तेजी से आखिर आज की इतनी बड़ी दुनिया में जो संकट है, उसमें कोई भी सोच सकता था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिप्स जा नहीं सकती हैं, फ्रेट 3 गुना हो गया है, इंश्योरेंस मिलता नहीं है। इस सब के बावजूद पिछले महीने फरवरी तक हमारा ट्रेड गुड्स का भी, सर्विसेज तो चलो शिप से नहीं जानी है, सर्विसेज में तो हर महीने बढ़त हो रही है, लेकिन गुड्स भी फरवरी तक फ्लैट है, घटा नहीं है। मार्च में भी लगभग मंथ के एंड तक, पहले हफ्ते में थोड़ी कमजोरी दिखी, दूसरे हफ्ते में पॉजिटिव हो गया, और मार्च के एंड तक हम फिर एक बार मेंटेन कर लेंगे भारत का एक्सपोर्ट। ये भी ध्यान में रखा जाए, करंट अकाउंट डेफिसिट के कई कंपोनेंट्स होते हैं, गुड्स का ट्रेड डेफिसिट, सर्विसेज का ट्रेड सरप्लस, और वो सरप्लस काफी बड़ा है। अगर 24 बिलियन इन्होंने जैसे गिना, वैसे सर्विसेज का सरप्लस देखे तो वो लगभग 17-18 बिलियन डॉलर हो जाएगा। तो साथ ही साथ भारत में रेमिटेंसेस बड़े पैमाने पे आते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट
लगातार हम एक के बाद एक हर वर्ष रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो ओवरऑल परिप्रेक्ष्य में भारत के जो फंडामेंटल्स हैं, भारत की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बहुत बड़ी मजबूत है। पूरे विश्व में एक प्रकार से भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाने का आज उत्साह है। आखिर आप सोचिए 3-3.5 वर्षों में हमने सब विकसित देशों के साथ 38 विकसित देशों में द्वार खुले हैं अब भारत के निर्यातकों के लिए। अब छोटी सोच के साथ नहीं, जिन देशों से स्पर्धा है, पिछली सरकार साधारणतः अधिकांश ऐसे देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करती थी जहां हमारी स्पर्धा है। अब उसमें हम कैसे खड़े होंगे? वो खुद हमारे साथ स्पर्धा में है तो वो भारत में भी एक्सपोर्ट करते हैं उनका सामान बड़े रूप में। पर जिस देश की पर कैपिटा इनकम समझो $90,000 है, किस देश की पर कैपिटा इनकम $2 लाख है, वो हमारे देश के साथ क्या स्पर्धा में खड़े होंगे? उसके सामने जब भारत निर्यात अब निकलेगा, जैसे जैसे एक एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑपरेशनलाइज होगा, यूके का तो हम कोशिश कर रहे हैं अगले महीने ही हो जाए, ऐसे एक एक एग्रीमेंट जब ऑपरेशनलाइज होगा, भारत के लिए अपार संभावनाएं, और भारत के मछुआरों के लिए, भारत के किसानों के लिए, भारत के छोटे सूक्ष्म लघु उद्योग के लिए, नए निर्यातकों के लिए, नए प्रोडक्ट्स और नए सर्विसेज के लिए नई मार्केट्स खुलेंगी बड़े रूप में। मेरे हिसाब से एक नया दौर, एक नया युग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत का शुरू, नया अध्याय लिखा जा रहा है और ये पूरे विश्व में भारत को वर्चस्व देगा। खगेन मुर्मू। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके अनुमति से वाणिज्य और उद्योग मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी से पूछना चाहता हूं कि ईपीएम और पहले की निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं में क्या अंतर है? इस नए मिशन को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? पश्चिम एशिया में हो रही व्यवधानों को देखते हुए निर्यातकों पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? धन्यवाद सर। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने 2 प्रश्न पूछे हैं और जैसे कि मैंने बताया कि ये सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रयास कर रही है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। उसी के तहत ये एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के योजना लाई गई है और ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। पहले क्या होता था कि मैंने बताया कि इंसेंटिव बेस्ड, सब्सिडी बेस्ड प्रोत्साहन दिया जाता था, जिससे पूरा एक्सपोर्ट का जो जर्नी है वो पूरी तरह कवर नहीं होती थी। अब प्रयास किया जा रहा है ईपीएम द्वारा कि पहले मार्केट प्रोडक्ट एनालिसिस की जाए, कौन से देश में क्या है, क्या परिस्थितियां हैं, कहां एक्सपोर्ट किया जा सकता है। उसके लिए मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव्स, तमाम ऐसी योजनाएं लाई जा रही हैं। फिर प्री शिपमेंट एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग होता है कि उसके लिए भी प्रोत्साहन, खास तौर से हमारे एमएसएमईज को, उनको भी ये दिया जाए। उसके लिए अलग इंटरेस्ट सबवेंशन जैसी स्कीम्स हैं, कोलैटरल सपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट क्रेडिट है, तमाम ये योजनाएं लाई गई हैं। ट्रेड कंप्लायंस, तमाम देशों से कंप्लायंस करना होता है कि उनकी क्या नीति है, उनके क्या रिस्ट्रिक्शन हैं, उनके कौन से क्वालिटी मेजर्स हैं, तमाम उनको भी देखा जाता है। उसके लिए भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उसमें ट्रेड रेगुलेशन, एक्रेडिटेशन, कंप्लायंस एनेबलमेंट के लिए एक योजना लाई गई है। फिर लॉजिस्टिक्स, जो सामान और सामग्री जाएगी वो कैसे जाएगी, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। और दूसरा जो माननीय सदस्य ने ईरान के बारे में मैंने बताया और पहले भी मैं दोहरा देता हूं कि सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। हमारा प्रयास यही है कि हमारे जितने निर्यात लोग कर रहे हैं उनको हम सुरक्षित रखें। और जैसे ही ये घटना हुई है, इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बना है, विभिन्न मंत्रालयों से, वाणिज्य मंत्रालय, डीजीएफटी, तमाम हर रोज 10 बजे सुबह मीटिंग होती है। क्या परिस्थितियां हैं, क्या चुनौतियां हैं, क्या उसके समाधान हैं, तमाम विभिन्न मंत्रालयों से कोऑर्डिनेट करते हुए ये प्रयास किया जा रहा है कि कम से कम, जैसे एक उदाहरण मैं दे दूं कि हमने हमारे एक्सपोर्ट में जो हो रहे हैं, क्योंकि बहुत से शिप्स वापस आ रही हैं, वो प्रावधान नहीं है कि वो अगर वापस आएंगी तो उसको इंपोर्ट माना जाएगा। तो सरकार ने यह फैसला ले लिया है कि जब वो सामान, क्योंकि आगे नहीं जा पा रहा है क्योंकि हॉर्मुज़ स्ट्रेट की वजह से, तो वो वापस पोर्ट पे अनलोड किया जा सकता है, उसे इंपोर्ट नहीं माना जाएगा। तमाम ऐसी चीज़ें और भी हैं, जैसे कि एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन होता है। मैं बता देता हूं ताकि साहब नहीं डिटेल में नहीं बता। धन्यवाद। श्री अनिल देसाई। थैंक यू चेयरमैन सर। सर, very elaborate answer is given, and निर्यात प्रोत्साहन and निर्यात दिशा
this has been given for from 2025 to 2030. That's a good attempt and it's a welcome step. सर इसी को लेके मैं ये पूछना चाहता हूँ कि now that Mediterranean shipping company, the largest this thing, taking consequences which are happening in the Middle East and out of the war between Israel and Iran, the things have come to such an end that exporters who have exported their cargo, they have declared end of voyage, and they were supposed to, whatever cargo was stranded in the Hormuz or nearing waters, they had to download there in the next shipping port, and that will not be coming back. What Minister was just saying, that will not be treated as import, but that is out of question. That is dumped on the next port, and they have already incurred losses. What steps are being taken? May I ask through you, sir? What steps are being taken out of this Niryat promotion and Niryat Disha? Okay. What government will be, because it is very necessary, otherwise it is like they will be ending their business, and it will be a great loss to the economy also and individuals also. Thank you. Honorable Speaker, sir, through you, I'd like to inform the House and the Honorable Member that he's raised a question which I just briefly answered in my previous reply. But to be specifically answering what he has said, that people are forced to unload their products. And I can tell you this government is aware, like I said, an interministerial group has been constituted, meeting daily, every day to see the market conditions, and as much as possible to ensure that these conditions are within no one's hands. These geopolitical uncertainties go with the part of trade. So the government is ensuring that there are no demerit charges. The insurance companies have been told to have a relatively easier outlook towards such conditions. The government is also in talks, like I said, not only within our ports where back-to-port compliances are being eased, but I can tell you also transshipment ports like the one in UAE, where the products are being dropped off. Other avenues are being explored, how that product can be taken to other locations to reach the destined outcomes. So I can tell you, case-to-case basis, everything is being monitored. Whatever can be done, possibly the government is on top of it. And any other issue that you might have, we are very happy to help. Question number 346, Sri Babu Singh Kushawa. क्वेश्चन नंबर 346। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि जौनपुर जिले में कृषि और संरचना कोष के तहत स्वीकृत 146 परियोजनाओं में से कितनी परियोजनाएं वर्तमान में पूर्ण हुई हैं, क्रियान्वित हैं, और जौनपुर जिले में AIF परियोजना से सृजित रोजगार पुरुष और महिलाओं में कितने किसानों की आय में वृद्धि हुई है, ये भी बताने की कृपा करेंगे। और जौनपुर जिले में AIF के अंतर्गत केवल एक वेयर हाउस और एक कोल्ड स्टोर चेन परियोजना स्वीकृत है तथा कुल ऋण राशि मात्र 61.08 करोड़ रुपए है। क्या सरकार जौनपुर में भंडारण, शीतगार और मूल श्रृंखला और संरचना बढ़ाने के लिए कोई विशेष पैकेज या अतिरिक्त अनुदान देने में प्राथमिकता देगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार में फर्क होता है, नेता और नेता में फर्क होता है, नीति और नियत में फर्क होता है। नेता अगर महान देशभक्त हो, कल्पनाशील मस्तिष्क का धनी हो, संवेदनशील हो और दिल में तड़फ हो देश की और जनता की सेवा की, तो नई योजनाएं बनती जाती है। और ऐसे ही नेता हैं नरेंद्र मोदी जी। आजादी के बाद किसान ने उत्पादन तो अन्न का बढ़ाया, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके साथ एक बड़ी समस्या रही कि कटाई के बाद पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के कोई प्रयत्न नहीं किए गए।
इससे हजारों करोड़ रुपए की फसल बर्बाद होती रही, रखने तक के ठीक इंतजाम नहीं थे, और भंडारण की व्यवस्था, कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था हो, प्रोसेसिंग की व्यवस्था हो, कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कोविड के दौरान 1 लाख करोड़ रुपए के एग्री इंफ्रा फंड का ऐलान किया, और मुझे आज बताते हुए खुशी है कि उस फंड के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय 1,70,241 परियोजनाओं के 84,502 करोड़ 78 लाख के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। और ये सब संरचनाएं जिनकी जिक्र माननीय बाबू कुशवाहा जी कर रहे थे, इन सब संरचनाओं का व्यापक पैमाने पर निर्माण किया गया है। अब तक 46,427 कस्टम हायरिंग सेंटर बनाए जा चुके हैं, 26,694 प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयां बनाई हैं, 28,570 फार्म ऑटोमेशन परियोजनाएं, 18,175 गोदाम, सॉर्टिंग ग्रेडिंग इकाइयां 4,316 और 2,895 कोल्ड स्टोरेज परियोजनाएं भी स्वीकृत की गई है। उन्होंने विशेष रूप से जौनपुर के बारे में सवाल पूछा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जौनपुर में भी 61 करोड़ 8 लाख रुपए की ऋण राशि से ये अनेकों संरचनाएं डेवलप करने का काम किया गया है। जौनपुर में परियोजनाओं की कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड चेन 1 बनी है, कस्टम हायरिंग सेंटर 23 बने हैं, फार्म हार्वेस्ट ऑटोमेशन 36 बने हैं, एकीकृत प्राथमिक और माध्यमिक प्रसंस्करण की इकाई 1 बनी है, साइलो राइपनिंग चैम्बर 11 बने हैं, प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर 61 बने हैं, सॉर्टिंग ग्रेडिंग की इकाई 6 बनी है, वेयरहाउस 1, मशरूम की खेती 3, जैविक आदानों का उत्पादन 1 और पैकेजिंग इकाइयां 2, ये जौनपुर में भी माननीय अध्यक्ष महोदय बनाई गई है। मैंने माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहा है कि कितने काम कर रहे हैं, जो बने हैं उनमें से कितने काम कर रहे हैं। और माननीय मंत्री जी तो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। मैं एक निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा पूरे देश के किसानों की तरफ से कि आप किसान और संरचना में 3% की ब्याज में छूट देते हैं। अगर आप पूरी ब्याज की छूट दे दें तो किसानों के ऊपर, देश के किसानों के ऊपर आपका उपकार होगा। बड़े बड़े लोगों को, उद्योगपतियों को हम सारा कर्ज माफ़ कर देते हैं, छूट दे देते हैं ब्याज में। किसानों को हम अगर पूरी ब्याज में छूट दे दें कृषि और संरचना में, तो आपका एहसान होगा किसानों पर, आपका नाम होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कृषक हितैषी विद्वान सदस्य माननीय बाबूजी कुशवाहा जी को ये निवेदन करना चाहता हूं कि जौनपुर में जो स्वीकृत परियोजनाएं हैं वो लगभग 146 हैं। जो पहले 25 में, जो पहले 24, 23 और 22 में बन गई, वो सब काम कर रही है। कोई सरकार परियोजना नहीं बनाती, प्राइवेट सेक्टर के लोग आते हैं या फिर अलग अलग एफपीओज आते हैं, अलग अलग संगठन सामने आते हैं या व्यक्ति सामने आते हैं, वो इन परियोजनाओं को बनाते हैं। और जो इन परियोजनाओं को बनाते हैं, कोल्ड स्टोरेज हो, वेयर हाउस हो, उनको 3% अनुदान, जो ब्याज अनुदान मिलता है, सब्सिडी मिलती है, सीधे किसान को नहीं मिलता, ये बनाने वालों को मिलता है, ताकि वो आसानी से कम लागत में ये बना सके। और माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी अनुदान पर हजारों लोगों ने ये परियोजनाएं लगाई है। और अब मैं आपको प्रसन्नता पूर्वक ये जानकारी दे रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने अब घोषणा की है कि 1 लाख करोड़ की और एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाएं फिर से बनाई जाएंगी। तो जितनी जरूरत हो ये सारी परियोजनाएं बनेगी और किसान को इसका लाभ सीधा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 347, श्री GM हरीश बाल योगी। सर, क्वेश्चन नंबर 347। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य। Speaker sir, thank you for allowing me to raise a supplement. Sir, I would like to begin by commending the Honourable Minister for the various initiatives undertaken by the Ministry for Welfare and Empowerment of Divyang Jans. Skill development programs play a very important
role in improving livelihood opportunities of persons with disabilities. However, unfortunately, no skilling programs, training programs under the National Action Plan for Skill Development of Persons with Disabilities have been conducted in my parliamentary constituency, Amlapuram, during the last 3 years. Therefore, could the Honourable Minister consider undertaking necessary steps to conduct skill training programs for Divyangjans in my parliament constituency, Amlapuram? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन को माननीय सदस्य को भी बताना चाहता हूं। सर्वप्रथम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से कहा कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और इस देश के विकास में सभी का सामूहिक प्रयास, मैं बताना चाहता हूं सदन को कि अधिनियम 2016 जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम बनाया था, इससे पहले ये दिव्यांगजन शब्द नहीं था, इनको विकलांग कहते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिव्यांगजनों के बारे में ये विचार करते हुए कि ये दिव्यांगजन ऐसे दिव्यांग होते हैं जिनके दिव्यांग होते हैं, भाषण क्या देते हो, जवाब दो ना आप। तो मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जहाँ पर एक तरफ दिव्यांगजनों के लिए सशक्त करने के लिए इस अधिनियम में बहुत सारे काम किए, तो मैं इसमें खास तौर से जो दिव्यांगजनों के लिए कौशल प्रशिक्षण के लिए उनके लिए रोजगार अवसर प्रदान करने की बात कही गई है, तो मैं कह सकता हूं कि दिव्यांगता का प्रमाण जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा कि 40% हो, 18 वर्ष से 59 वर्ष की आयु हो, साथ में दिव्यांगता की श्रेणी भी उससे पहले 7 केवल हुआ करती थी, उन्हें बढ़ाकर के 7 से 21 प्रकार की दिव्यांगता, उनमें कोई भी किसी प्रकार का दिव्यांग व्यक्ति जिसकी 40% तक दिव्यांगता है, आप लोग कोशिश नहीं कर सकते कि कम जवाब देने की? तो कितनी बार सदन से मैं बोलता हूं आपको, तुष्टि नहीं होती है ना, हर बार डिटेल जवाब देते हो आप। माननीय अध्यक्ष जी, तब मैं कह सकता हूं कि लगातार जिस तरह से दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए काम किया है, हमने 1,62,000 के लिए कौशल Second supplement, देकर के जितना पूछो उतना जवाब दे दो बस। Sir, whether the various categories of intellectual disabilities, including autism spectrum disorder and specific learning disabilities which are recognized under the Rights of Person with Disabilities Act 2016, are also covered under these skill development programs? If so, what measures have been taken to ensure their effective participation? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय योजना हमारी NAP SDP, इसके तहत प्रशिक्षुओं की पात्रता की दिव्यांगता को दिव्यांगजन अधिकार 2016 की धारा 2 में परिभाषित दिव्यांगता के अनुरूप निर्धारित किया गया है। इसलिए बौद्धिक अक्षमता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार और अष्टम अधिगम अक्षमताओं के लिए दिव्यांगजन की सभी श्रेणियां जो हमारी दिव्यांगजन अधिकार जो अधिनियम है उसमें जो आती हैं उसमें हम देते हैं, और इसमें बहुत सारे बैच चल रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ से कोई प्रस्ताव नहीं आया है। प्रस्ताव कोई आएगा तो आपके यहाँ भी हम ट्रेनिंग चलाने का काम करेंगे। और मैं बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर हमारे CRC केवल 8 हुआ करते थे, 2014 से पहले प्रशिक्षण और कौशल के लिए CRC बढ़ाकर 8 से हमने 30 करने का काम किया है। राष्ट्रीय संस्थान हमारे 7 हुआ करते थे, उनको बढ़ाकर के हमने 9 करने का काम किया है। CM रमेश, एक समय कम है, मंत्री जी को लंबा जवाब देना है। Opportunity, sir. The supplementary on skill development for Divyangs. Sir, I would like to inform that there is no exclusive skill development center for Divyangs in Anakapalli district of Andhra Pradesh. I would like to know from the Honorable Minister for Social Justice and Empowerment whether there is any proposal to establish a dedicated training center in Anakapalli district, my constituency, to improve access to skill development for persons with disabilities. If so, please provide the details. माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य जी के द्वारा अलकापल्ली के संबंध में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, वहां से कोई प्रस्ताव प्राप्त होगा उस पर आगे बढ़ाया जाएगा।
प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्यगण, मुझे निम्नलिखित माननीय सदस्यों की स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। श्री वीरेंद्र सिंह, श्री के राधाकृष्णन, श्री मनीष तिवारी, राजेश रंजन, के सुरेश, प्रोफेसर सौगत राय। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना की आज अनुमति नहीं दी है।